جی جی حسنین رضا صاحب، مسلمان ہیں آپ ابھی تک کہ اسلام چھوڑ دیا؟ نہیں ہوں، مسلمان ہوں۔ نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھتے تو ہیں۔ یا سنائیے گا۔ آپ کو سنانا ضروری ہے کیا؟ جی سر، اسٹریم کا رول ہے، جب تک نہیں سنائیں گے ہم آگے بات نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، سنا دیتا ہوں، اس میں جی کیا ہے۔ سنائیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تھینک یو سو ویری مچ سر۔ آج کا ٹاپک تھا کہ قرآن جو ہے رمضان میں ریویل ہوا، اور آپ کے سامنے قرآن کی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا رمضان کے علاوہ کسی دن میں قرآن نازل نہیں ہوا؟ رمضان میں قرآن شریف مکمل نازل ہو گیا تھا۔ ہیں؟ تو ہمیں تو ساری دنیا تو بتاتی ہے کہ 23 سال میں نازل ہوا محمد پہ، وقتاً فوقتاً، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ ہاں ہاں، ٹکڑے ٹکڑے تو رمضان میں مکمل ہوا۔ ہیں؟ کیا آخری آیت آیت تو رمضان میں یہ آئی نہیں تھی؟ کہہ رہی ہے، آیت تو یہ نہیں کہہ رہی ہے۔ ایک سے پہلے پتہ کر لیں، تو آخری آیت رمضان میں نازل ہوئی تھی؟ ہاں جی آخری آیت۔ ہاں لیکن یہ اب ساحل بھائی کا کوشچن لے لو، شہر الرمضان الذی انزل فیہ انزل فیہ القرآن، القرآن ہدی پورا کا پورا للناس قرآن۔ وبینات من الہدی والفرقان۔ اور پھر یہ والی آیت جو یہ لاسٹ آیت ہونا چاہیے، اگر لاسٹ آیت قرآن کی نازل ہوئی ہے رمضان میں، تو یہ والی آیت لاسٹ ہونا چاہیے تھا۔ ہاں۔ محمد ہاں کب نہیں، میں آپ تو نازل نے ہوئی؟ جواب دینا ہے، یہ ہمارا سوال ہے۔ آپ ترجمہ کس کا پڑھ رہے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے۔ کسی کا بھی نہیں پڑھ رہا ہوں میں، تو کسی کا بھی نہیں پڑھ رہا ہوں میں، تو عربی پڑھ رہا ہوں۔ ہاں تو ترجمہ اردو میں کیسے کر رہے ہیں؟ میں کر ہی نہیں رہا۔ شہر کا مطلب ہوتا ہے مہینہ، رمضان ہوتا ہے نام مہینے کا۔ اللہ جی جس کے اندر انزلہ اتارا گیا، فی ہی اندر، القرآن قرآن جو ہدائی ہے، جو ہدایت ہے، للناس کے اوپر۔ تو بھائی جان مجھے بتائیں کہ بھائی جان اللہ نے تو نہیں بولا آخری آیت، اور نمبر ایک بات، نمبر دوسری بات، محمد پہ آخری آیت کس مرنے سے کتنی دیر پہلے نازل ہوئی تھی آخری آیت؟ وہ جان کے کرو گے کیا؟ مجھے پتہ لگے نا، تاکہ پتہ لگے محمد پہ آخری آیت کب نازل ہوئی تھی اس سے مرنے سے۔ کبھی بھی نازل ہو، لیکن قرآن شریف مکمل نازل ہو گئی، نہ 1 انچ زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا ہے، بس۔ ارے وہ بعد میں انچوں کو ناپیں گے، پہلے ہم یہ ناپ لیں کہ رمضان میں قرآن آیا کیسے، کب آیا، کیونکہ قرآن تو 23 سالوں میں آیا بھائی۔ ہاں ہاں، تو آخری آیت کون سی آئی محمد پہ؟ وہ آپ کو کیوں جاننا ہے؟ تو پتہ لگے نا کہ رمضان میں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، تمہاری بات کو ویریفائی نہیں کرنا۔ قرآن کی آخری آیت محمد پہ کب نازل ہوئی تھی، اس کے مرنے سے کتنی دیر پہلے؟ دیکھو میں کوئی عالم نہیں ہوں جو میں یہ سب تم نے بتاؤں۔ کیسے کہہ دیا کہ رمضان میں آخری آیت نازل ہوئی تھی؟ تو عالم سے سنے ہیں تب نا۔ تو عالم سے پوچھا نہیں کہ جناب آپ کے پاس کیا علم ہے اس بات کا؟ تم تو لوگوں کو اپنا عالم خود کا سے دماغ نہیں لگانا رہتا؟ نہیں، تم لوگ ایتھسٹ ہو نا۔ ارے ہم لوگ جو کوئی بھی ہے اس سے آپ کو عقل یوز کرنا چاہیے، اس کا کیا لینا دینا ہے؟ آپ لوگ اپنا عقل کیوں نہیں لگاتے ہو؟ یہ عالموں کے پیچھے اندھے کیوں بنے بیٹھے ہو؟ عالم سچے ہیں۔ اچھا، کس بنیاد پہ آپ نے ان کو سچا مانا؟ کیوں نہیں مانے؟ ارے کس بنیاد پہ بھائی؟ کیوں نہیں مانے یہ کیسا جواب ہے؟ انہی سے تو سارا دین سیکھا ہے۔ کیا سیکھا آپ نے؟ انہی سے جتنا بھی کچھ سیکھا ہے، جو بھی اور اچھا، شیعہ سیکھنے کو اسلام بچا صحیح ہے ہے۔ یا سنی اسلام صحیح ہے؟
سر ایک شیعہ سیکنڈ سر سے پہلے ٹاپک چینج نہ کریں، رکیے ذرا، ان کے عالم میں نہیں ہاں ہے، نہیں اسی پہ پہلے یہ والا عالم صحیح کر لیں گے. ہاں یہ دیکھیں جناب، آپ ہاں کے علماء نے لکھا ہوا ہے کہ جو آخری ورس ہے، فائنل ورس ہے جو قرآن میں ریویل ہوئی، وہ 18ویں سینچری 625 کے اندر ان دا منتھ آف ذی الحجہ ہوئی تھی، رمضان میں تو ہوئی نہیں تھی. جو قرآن ریولیشن کے مطابق ہے، اس کے مطابق یہ ہاں اس کے مطابق جو آخری ورس ہے وہ تو ذی الحجہ کے اندر ہوئی، رمضان میں تو ہوئی نہیں. تو آپ کا جو عالم ہے، جو ساحل نے کہا تھا آپ کے عالم جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے کہا آپ کیسے کہتے جھوٹ بولتے ہیں بھائی جان؟ یہ تو پروو ہو گیا کہ جو ساحل نے کہا ہے کہ آپ کے عالم جھوٹ بولتے ہیں، وہ 100% سچا بولا ہے ساحل نے. آپ کہہ رہے کیسے کہہ سکتے ہو؟ دیکھو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے عالم نے جھوٹ بولا ہے؟ ساحل نے کنفرم کیا جھوٹ بولا ہے، اور میں نے ایویڈنس دکھایا کہ ساحل نے صحیح بولا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں. ساحل صاحب آپ کنٹینیو کریں. اور کیا کوئی ہر بھجیال کیا عالم چل رہا ہے سچا پیچھے نہیں سے ہے. اتنی آواز آ رہی ہے؟ ہاں مسلمان میں 72 فرقے ہوں گے، 72 اچھا، فرقے جہنمی ہوں گے، ایک ہی جو ہوگا وہ تو جنتی ہوگا. کون سا عالم 73 فرقے سچا ہوں گے، ہے؟ 73. کون سا عالم سچا ہے؟ یہ کیسے؟ آپ پھر سے سوال وہی آ جائے گا جو آپ بار بار ہاں اس عالم میں جا رہے ہیں. کون سا عالم ہاں سچ بول رہا ہے یہ کیسے پتا چلے گا آپ کو؟ تو ہمارے نصیب کی بات ہے. ارے ہاں تو بھائی جو باطل فرقہ کے عالم جو بول رہے ہیں اور جو ہاں عوام مان رہی ہے، ہاں تو اللہ نے ان کی ہاں نصیب ہی خراب رکھی ہے، تو ان کی کیا غلطی ہے پھر؟ اب ویسا مقدر تقدیر میں سب لکھا جا چکا ہے. ایگزیکٹلی، تو ان کی کیا غلطی ہے؟ اگر تقدیر ہاں میں لکھا جا چکا ہے کہ وہ باطل فرقوں کے عالم کو صحیح مانیں گے، تو ان کی کیا غلطی ہے پھر؟ اگر بات نصیب کی ہے اور مقدر کی ہے تو ہندوؤں کا بھی اپنا مقدر ہے اور کرسچن لوگ کا بھی اپنا مقدر ہندو ہے. تو جہنمی ہے ہی بھائی، وہ چھوڑ دو. ہاں لیکن ابھی فی الحال ہم لوگ آپ کی اور مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ یہ لے کے آئے. تو جب ہوں نصیب میں اللہ نے لکھ دیا تھا ان کے کہ باطل فرقوں کے عالم کو وہ باقی دوسرے مسلمان دوسرے فرقے والے مانیں گے، تو ان لوگوں کی کیا ہوں غلطی ہے؟ اللہ ان کو کیوں جہنم میں ڈھکیل رہا ہے، جبکہ وہ خود اس نے لکھا ہے نصیب میں کہ تم باطل فرقوں کے عالموں کو مانو گے؟ دیکھو دیکھو تقدیر میں دکھاؤ. جو لکھا ہوا ہے ہوں وہ اللہ تعالیٰ نے وہی لکھا ہے جو کرنے والے تھے بندے. تو آپ پھر تقدیر میں کیوں بولے کہ نصیب میں ہے؟ نصیب کی وجہ سے آپ صحیح فرقے کو مان رہے ہیں، ہاں تو ایسا کیوں بولے ہم آپ؟ کرنے والے ہیں تو ہمارے تقدیر میں لکھا ہے. اوکے، تو تم نے کس بنیاد ہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کیا؟ ہاں کیونکہ تم کرنے والے ہو نا، ہوں تو تم نے کس ساحل ایک بنیاد پہ ہاں ڈیسائیڈ کیا؟ ساحل ون مور کوشچن ہے، ہوں جی جی، ون مور کوشچن ہے کہ پلیز پلیز تقدیر، ایڈم. ہاں کیا میں کچھ ایسا کر سکتا ہوں جو میری تقدیر میں نہ لکھا ہو؟ جو آپ کے تقدیر میں لکھا نہیں ہے وہ میں نہیں وہ کر آپ سکتا. نہیں کر سکتے، نہیں کر اوکے سکتے. تھینک یو ساحل صاحب. فری ول کی ماں بہن چود دی انہوں نے، پکڑ لے ساحل ارے صاحب. بھائی کنفیوز ہے، خود کنفیوز ہے ایڈم تم صاحب، یہ کبھی گالی جواب نہیں کیوں دے دے رہے ہو سکتے. تم؟ ہاں اچھا، اس کو اگنور کرو گالی سوری کو. یار، سوری لیکن میں معذرت کرتا ہوں اس بات پہ، لیکن وہ آپ نے جوش میں آ گئے تھے ایڈم صاحب، آپ نے فری ول کی جو کی ہے اس کی وجہ سے میری جو ہے نا جذبات نکل آئے تھے. جذبات. لیکن ہاں لیکن یعنی کہ میں ہاں ٹھیک ہے، تقدیر میں جو اپنے لکھا ہے اس جذبات کو کے اپنے بغیر کنٹرول میں رکھو. اس کے لیفٹ رائٹ اگر میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تو فری ول تو ختم ہو گیا نا. ہاں صاحب آپ کا تو ہاں فیوریٹ ٹاپک ختم ہے، ہے. پکڑے نا یار اس پہ اور ایڈم صاحب جو ہے وہ جذبات میں جو آئے ہیں، وہ ہاں ابو بکر کی ہاں سنت کو انہوں نے فالو کیا ہے. اچھا ابو بکر بھی گالی دیتے تھے. ایڈم صاحب نے تو ہلکی گالی دی ہے، ابو بکر صاحب تو ایک دم ہی ہاں گندی گالی دیتے تھے، وہ سیدھا پرائیویٹ پارٹ ہاں کا نام لیتے تھے. تو یہ سب آپ نہ بول رہے ہو. ہاں ہم نہیں بول رہے، تم آپ کوئی کے بخاری صاحب بول رہے ہاں ہیں. ہم نہیں بولے، آپ کے کون بخاری صاحب عالم بولے. صاحب بولے؟ عالم کا نام بخاری بتائیے نا صاحب، تب ہم بولیں گے نا. ارے امام بخاری. اب تو ایسا نام بولیے نا. بول یہ دیا نا بخاری ابھی، لنک ہے. امام بخاری. امسس بدر اللات. ابو بکر کہتا ہے امسس بدر اللات، لات کی چو کو چاٹو. جی کہاں؟ بھائی، تو وہ، ہاں، یہ لو، ابو بکر ابے کہتا ہے جا کہ لات لات، بت کی شرم گاہ چوس لے، امسس ہاں، بزر چو کو اللات. چاٹو. یہ لے بگے، یہ لو، جا کے لات بت کی شرم گاہ کو یعنی کہ چو کو چاٹو. یہ تمہارے ابو بکر نے بولا جذبات میں آگے.
और एडम साहब इफ यू डोंट माइंड, एक मिनट रुक भाई, प्यारे भाई, तुम लोग की आंखें खोलना कितना जरूरी है मेरे भाई, देखो जरा, हम लोगों को आप लोगों से बहुत मोहब्बत है। एडम साहब वो जरा, मैं अगर है ना लैपटॉप पे होता ना मैं खुद निकाल लेता जी एडम कोई साहब, मसला नहीं, आप हुक्म वो करें। जरा वो इसकी क्या नाम है, बमदर्द और डोरेमोन की जो वो क्लिप है जहाँ पे दोनों ने कहा हमारे पास इसका भी जवाब नहीं है, सेम सवाल था उनसे भी, जरा वो लेके आइए ना एडम साहब प्लीज। वो आपके चैनल पे, एक सेकंड, उसका नाम हाँ क्या है, मेरे उसका नाम चैनल मैं पे नाम ये शॉर्ट याद बोल है? है, रहा हूँ, आप रुक सुनिए। जाओ थोड़ा, आप रुक जाओ भाई, थोड़ा हाँ रुक मैं जाओ। रुक रहा हूँ, हाँ रुक रहा हाँ हूँ। रुक यार जाओ। बड़ी पुरानी वीडियो है वो, एक सेकंड में ढूंढता हूँ अरे उसको नोमैड शायद। भाई है ना, नोमैड भाई फटक से वो लिंक दो ना जरा, अभी आ जाएगा। एक सेकंड, मैं सर्च कर रहा हूँ आपके चैनल पे, इस वक्त एक सेकंड रुके। हम दर्द के ऊपर मैंने सर्च किया है, किधर गया। नोमैड भाई जरा एडम साहब को डिस्कॉर्ड पे दे दो ताकि ढूंढना ना पड़े। यार ये बड़ी पुरानी वाली वीडियो है साहिल। हाँ नोमैड भाई भी दे दे। ये 1 महीना पहले ही डाला है मेरे ख्याल से, अभी डाला है, ज्यादा अच्छा अभी पुराना दोबारा भी नहीं डाला है, है। टाइटल में हमदर्द है, ये नहीं क्या वही है? है, पता नहीं यार वो एडिटर साहब ने हमारे क्या डाले हैं। टाइटल के लिए क्या है? तू मुफ्ती ऐसा करके कुछ लिखा रहेगा। अच्छा शॉर्ट बनाया मेरे ख्याल में, एक शॉर्ट भी आया मेरे सामने, रुको। हाँ शॉर्ट में है वो। हाय 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 हाय, मिल गया, मिल गया, अरे वाह। शॉर्ट में मिल गया। लो जी। हाँ दिखाइए। ये लो। हजरत अबू बकर जो है वो किसी की कॉटेज को कहते हैं कि उसकी प्राइवेट पार्ट को जाके मैंने तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में कह दिया है कि उनका ये अमल काबिल तकलीद नहीं था। अच्छा, मैंने आपसे ये सवाल नहीं किया हजरत अबू बकर का अमल काबिल तकलीफ था या नहीं था, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि वो अमल क्या सही था या गलत था, वो बताइए आप। मैंने बता दिया कि हजरत अबू बकर ने जो कहा है वो बिल्कुल अपने जज्बात की तर्जुमानी की, मैं होता तो उससे बढ़कर कहता। तो सही था, क्योंकि जज्बात में इंसान गलत काम भी करता है। मुझे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के केस से इस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं कि भाई मैंने इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। सही बात है, माजरत चाहता हूँ मुफ्ती आज़म साहब, नहीं, जिस तरह आप बात कर रहे हो इस टाइम पर इस चीज का कोई जवाब नहीं है जिस चीज का आप बात कर रहे हो। बस खत्म हो गया। इस चीज का कोई जवाब नहीं है। वेरी वेल डन साहिल साहब, बड़ा जबरदस्त लो पकड़ा भाई, आपने वो। लो मैं भाई, ये बोल रहा हूँ, दो हाँ। मुफ्ती दोनों कहते हैं हमारे पास जवाब नहीं है भाई, वो ये तो कोई तुम्हारा भी हो, इस्लाम है। वो कौन सा आलिम है क्या है नहीं पता, एक लेकिन मैं ये देवबंदी बोल रहा है, हूँ। एक सुन भाई, हाँ हाँ अरे थोड़ा पॉपकॉर्न की तरह इतना ब्रेव फेल मत करो। ये कह रहे हो कि हाँ कौन आलिम है, ये एक जो है जिसकी शक्ल दिख रही मोटे मोटे गाल वाला, ये मुफ्ती वजड़ी हाँ है जो कि देवबंदी आलिम है, और जो ऊपर जिसकी हाँ शक्ल दिख रही है वो मुफ्ती फजल हमदर्द है जो कि पहले बरेलवी था और अब थोड़ा हाँ शिया और बरेलवी के बीच में आ गया है, वो हुसैनी बन गया है। हाँ तो ये तो दो फिरके वाले तुम्हारे आलिम जो है मेरे एक छोटे से सवाल का वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं और कहते हैं कि हमारे पास इसका भी जवाब नहीं है। ये तो तुम्हारा तो हाल है तुम्हारे अबू बकर ये और कोई बड़े मुफ्ती है जो जवाब देंगे? अरे मैं नहीं, ये तुम्हारी नजर बोल में रहा इनसे हूँ, बड़ा सुनो, मैं ये बड़े चे अपने किस्म के हिसाब मुफ्ती है से ना। सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूँ। हाँ ये सुनो, बड़े चे किस्म के मौलवी है ना ये दोनों मुफ्ती। वो कैसे भी, मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप लोग सुनो, मेरी बात सुन ही नहीं रहे, सर जी हंसे जा रहे। सुनाओ हाँ कि आपने जो हवाला दिया है, हाँ वो हाँ। सरासर झूठ है। अबे हवाले को ही झूठ हो गया बोल हंस दिया। के, तो हंस के तुम्हारे हो ये गया। दो आलिम तो नहीं बोले, ये तुम्हारे दो हाँ। आलिम तो नहीं बोले कि तुमने हवाला झूठ दिया है, ये तो नहीं बोला उन्होंने कि तुम झूठा हवाला पेश कर रहे हो अबू बकर के बारे में। हर वो तो कह किसी रहे को कि हर हमारे पास चीज इसका मालूम जवाब नहीं होती। अच्छा तुम्हारे हिसाब से कौन सा आलिम है जिसको मालूम है, जरा एक का नाम बताओ। एक सेकंड साहिल, एक सेकंड ज्यादा रिवाइंड अच्छा करते हैं। मैं अगर एक बताऊंगा, रजा, नाम लूंगा। रजा हाँ रुक जा। हाँ हाँ ये बोलो। सही बुखारी झूठी है, सही बुखारी हाँ अब सही बुखारी है।
तो सही बुखारी कुरान शरीफ के बराबर मर्तबा थोड़ी रखती है, कुरान शरीफ से नीचे है। तो हाँ क्या नीचे है, लेकिन पता मेरे है, कह रहे हैं मतलब सही बुखारी, इसमें रद्द कुरान बदल नहीं मजीद हो में, सकता, क्या पता। कुरान मजीद में कहीं नहीं लिखा, बल्कि ये कुरान मजीद के बिल्कुल बराबर है। कुरान मजीद में इस चीज की गवाही दी है कि मोहम्मद और उसके सहाबी दूसरों के बुतों हाँ को गालियां देते थे। कुरान इस चीज की गवाही देता है। फिर कुरान ने कहा कि मत दो। तो अबू बकर अगर गाली दे रहा है तो कुरान, ये हदीस कुरान के बिल्कुल एन मुताबिक है। लेकिन कुछ भी हो, कुरान शरीफ के बराबर नहीं है। कुरान कुरान शरीफ नहीं शरीफ है, एक के सेकंड, कुरान शरीफ नहीं है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ अरबी में कुरान के साथ शरीफ। कुरान मजीद हो हम सकता है, शरीफ लगाते, नहीं है। हमारी हमारी सबसे बड़ी किताब है, हम लगाते। नहीं, किस तरह लगाते हो? किस सहाबी ने लगाया कुरान के साथ शरीफ? मजीद लगाया, मजीद लगाओ, शरीफ कैसे लगा सकते हो? कुरान मजीद भी लगा सकते, उसमें क्या है, कुरान नहीं, मजीद मजीद लगाओ, शरीफ नहीं लगा सकते। शरीफ अल्लाह का शराफत कुरान के कलाम। अंदर नहीं है। भाई भाई सुन भाई, हाँ कुरान के अगेंस्ट नहीं जाना है ना तुमको। क्या? कुरान के अगेंस्ट नहीं जाना है ना तुमको। कुरान में चेंजेस नहीं है। हाँ, तो ये जो सही बुखारी जो तुम बता रहे हो, क्या पता यही सही हो। हाँ, तो ये सही है। घटना हुई है। साफ साफ पता चल रहा है कि तुम हजरत अबू बकर सिद्दीक को पहला खलीफा नहीं मानते हो बस। हाँ, कुरान शरीफ में सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा गया है रजा, सहाबी। रजा, हाँ हाँ, क्या हो? साहिल ने एक सवाल किया है। साहिल ने कहा है खतना हुआ है तुम्हारा? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं हुआ होगा, हम मुसलमान हैं। कुरान से साबित कर दो। हर कोई इतना आलिम, इतना बड़ा। रजा, इतने बड़े की बात नहीं है। ये सवाल इसलिए किया गया, कुरान में खतना नहीं लिखा। लिहाजा अगर कोई हदीस कुरान के अंदर नहीं है तो तुमने उसको मानना नहीं है। लिहाजा अगर मानना नहीं है तो फिर पहले ये साबित करो खतने के लिए कुरान की आयत क्या है, बताओ। अगर कुरान शरीफ से नहीं निकाल पा रहे, हमारे उलमाए कराम ने बताया है कि कुरान तो ये शरीफ भी, में ये जो अगर हदीस है, नहीं मिला तुम्हारे उलमा, तो हदीस शरीफ में देखो। अगर तुम्हारे हदीस दो एक्सटेज किया, तुम्हें तुम्हारी आवाज बकवास नहीं आ रही। तो तुम्हारे दो उलमाए अकराम ने बताया कि हदीस सही है, और उन्होंने कहा कि हाँ अबू बकर ने गाली दी है। तुम कौन होते हो जो मुझे कहो, मुझे एक मुफ्ती लेके आओ जो बताए, तुम्हारा वाला कोई आलम बताए कि ये हदीस गलत है। बताओ वो वो मुफ्ती बताओ दोनों जिसने इस हदीस को गलत आलिम। कहा। हाँ ठीक है, तो फिर कल या परसों, हाँ वेडनेसडे को आ जाना, वेडनेसडे को अपना आलिम लेके आना। वेडनेसडे को ना। हाँ, हाँ ठीक ठीक है, सेम टाइम पे अपना आलिम लेके आना और मुझे दिखाना कि ये हदीस गलत है। ठीक साबित है, करना तुमने। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं तुम करोगे, तुम आओगे नहीं इंशाल्लाह। तुमने कह दिया इंशाल्लाह तो बोला ही तब जाता है जब झूठ बोलना हो। अच्छा, हाँ, मतलब अल्लाह पे तुम, मतलब ये भरोसा नहीं है ना? अल्लाह है क्या? अल्लाह तो अम्ब है। हाँ हाँ, अब तुम लोग नहीं मानोगे तो अब क्या ही, ज्यादा बोल नहीं सकते ना। साबित कर दो नहीं ना यार। मानोगे। मैं सूरज को मशरिक से निकालता हूँ, हाँ, तुम अल्लाह को कहो मगरिब से निकाल के दिखाए। मैं ये बात जो अभी बोल रहा हूँ, कान खोल के सुनो। हाँ, कि अभी तक मगरिब क्या से कान बंद है? सूरज कयामत के दिन निकल जाएगा। वो जब जब वो जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर ना मुझे बताओ, फ्यूचर का तेरे को भी नहीं हाँ, पता। अभी मुझे मगरिब से निकाल के दिखाओ। मैं मशरिक से निकालता हूँ, तुम मगरिब से निकाल के दिखाओ। मैं अल्लाह हूँ। वो निकल जाएगा, बस तुम देखते रहना। निकल जाएगा, मैं देखता रहूंगा। ठीक है, जाओ फिर याशी करो। मजीद से आगे शराब हाँ शुरू क्यों ठीक टून है, हुए तुम बहुत ज्यादा। जाओ, घर जाओ बेटा। वो मैदान हश्र में सबको पता चल जाएगा हशर के कौन सही मैदान है में कौन तुम्हारा गलत है। जो अल्लाह है और हाँ, तुम्हारा मोहम्मद जो है वो मेरे पैर की जूती के नीचे होगा। देख लेना। ये सब मत बोलो। हाँ, क्लेम है भाई, तेरे हम्म। भी अल्लाह का क्लेम है, एक मेरा क्लेम है। तू अपने क्लेम दे रहा है, मैं अपना क्लेम दे रहा हूँ। क्लेम तो अपने तो अपने मैं है ना। तेरे किसी को गाली दे रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ?
हाँ भाई मैंने कब गाली दिया? तुम हशर के मैदान में मुझे कह रहे हो कि मैं जन्नत में सड़ूंगा, तो मैं बता रहा हूँ कि हशर के मैदान में तेरा मोहम्मद मेरे पैर के नीचे होगा। मैं गाली अभी क्यों दी? बोला क्या जहन्नम में सड़ोगे? मैं भाई बोला कि वो भाई मैदान मैं हश्र मेरा में सबको तेरा पता क्लेम चल है ना, जाएगा। मेरा भी क्लेम है, एलन साहब, क्लेम मेरी ही आवाज रखने आ है रही ना। है? हाँ सही सब आ गई आपकी, वेलकम। अच्छा, मेरे वो सवाल का इन्होंने जवाब दिया, खतना हुई है भाई आपकी? जी सर, इन्होंने वही जवाब दिया जी, हम हदीस से ले लेंगे। मैंने कहा फिर हदीस तो नहीं जो नहीं आप ले लो। नहीं नहीं, भाई खतना हुई है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं हुई होगी? ओके, आपका कुरान कहता है, अल्लाह कहता है कि अल्लाह की जो क्रिएशन है उसमें आपने चेंज नहीं करना है, हाय हाय ठीक है? हाय अल्लाह हाय की हाय हाय तकलीफ में हाय आपको हाय। चेंज नहीं करना है। मेरा सवाल ये तो फिर नहीं है कि कुरान में हाँ खतने का, बात खत्म होने दे भाई। मेरा हाँ आर्गुमेंट ये नहीं है कि कुरान में खतने का जिक्र नहीं है, ठीक है? इसको बहुत ध्यान से सुनना। मेरे ख्याल से आदम साहब ने आपको वो बोला होगा कि कुरान में नहीं हाँ नहीं है सर, आपने बड़ा खतना। सही पकड़ा, ये मैं आयत मेरा ले आया हूँ सवाल, आपकी, मैं आयत ले आया हूँ। हाँ, मेरा सवाल ये है कि कुरान में तो अल्लाह कहता है कि आपने अल्लाह की क्रिएशन को चेंज नहीं करना है, ठीक है? अल्लाह ने आपको बिना खतने के दुनिया में भेजा है। आप अगर खतना करा रहे हैं, आप कुरान के ऐन ऐन खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा था कि मैं हदीसों को कुरान से नीचे समझता हूं, आपने खुद कहा था। तो आप खतना हाँ करा के आप जो है वो कुरान के अगेंस्ट में जा रहे हैं। देखिए आपके सामने कुरान की आयत है, बेशक ये कुरान देखो, नो तो कह चेंज रहा शुड है। देयर बी इन द क्रिएशन ऑफ अल्लाह। जी हाँ, लेकिन हाँ, अल्लाह इसका कहता है लक़द मतलब खलक़नल समझने के इंसान लिए फी, हाँ हाँ 10 हाँ साल हाँ मदरसे में पढ़ना पड़ता है इसको, इस ओ कुरानी भाई, आयत को समझने के लिए। हर किसी की बस की बात नहीं है कि वो एक दो दिन बस ये मदरसे में या किसी आलिम से सुन लिया और बस हो गया। मदरसे में 10 मतलब ये साल आम पढ़ना पड़ता लोगों है की इसके लिए। समझने की, मतलब कुरान नहीं, जो है वो आम आम इसीलिए तो इंसानों के समझने की चीज नहीं है। इसीलिए तो इल्म हासिल करना फर्ज है मुसलमानों पर, कि भाई इल्म ये हासिल करो। स्टेटमेंट दे दो, भाई ये स्टेटमेंट दे दो कि कुरान हाँ को समझना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। ये एक स्टेटमेंट नहीं, पहले दे दो आप। हाँ क्या सही नहीं? है बोलो कि ये कि आम इंसान कुरान नहीं एक समझ आम सकता। इंसान, ओके एक बात बताओ अभी, कुरान हाँ अगर आम इंसान समझ ही नहीं सकता, तो जो इंसान इस्लाम में पैदा ही नहीं हुआ, मुसलमान हाँ के घराने में पैदा ही नहीं हुआ, तो उसका तो मदरसे हाँ जाने का तो कोई यही नहीं बनता, तुक ही नहीं बनता। तो एक आम इंसान जो कि मुसलमान घराने में पैदा नहीं हुआ, उसको तो कभी कुरान समझ में नहीं आएगा, तो वो कुरान को एक्सेप्ट क्यों करे? फिर वही मुकद्दर की बात। नहीं, मुकद्दर तो आपने कहा था, मुकद्दर इस वजह से क्योंकि आप एक्शन करते हो, इस वजह से वो मुकद्दर में लिखा हुआ है, ना कि वाइस वर्सा। अब उसको आप चेंज नहीं हाँ करेंगे, है ना? हाँ तो सही है। अब हम एक्शन एक्शन को देखेंगे, ना कि मुकद्दर को। हालांकि मुकद्दर पे हम बहुत डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ नहीं, आप उस लेवल पे नहीं है। मुझे हाँ ये मैं सिर्फ नहीं बताइए, हूँ। हाँ, तो आपकी जो अकल है उसके हिसाब से हम चलते हैं। ये बताओ कि एक हाँ इंसान जिसको कुरान समझ में आ ही नहीं सकता, बकौल आपके, आपने 2-3 हाँ बार ये स्टेटमेंट रिपीट किया है, तो वो हाँ कुरान को हाँ एक्सेप्ट क्यों करेगा? इसका जवाब दो। इस इसीलिए तो हमारे बड़े बड़े आलिम दीन तबलीग कर रहे हैं। नहीं भाई, तबलीग उनके करने से क्या होगा? जब एक इंसान को, जब तक वो मदरसे में जाके 10-10 साल नहीं देगा, उसको कुरान समझ में ही नहीं आएगा, तो वो कैसे कुरान को एक्सेप्ट करेगा? आप लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। यार जवाब नहीं है तो ये डायलॉग मार दोगे समझाना मुश्किल है? जब आपका अल्लाह खुद नहीं समझा पा रहा है अपने खुद किताब से, तो आप किस खेत की मूली हो जो आप समझा पाओगे? आपका मैं खाली थोड़ी के समझा कायनात पाऊंगा। सो कॉल्ड, नहीं, जब आपका खुद खाली के कायनात अपनी किताब में नहीं समझा पा रहा है एक आम इंसान को, तो आपका आपका आलिम जो है वो आपके अल्लाह से बड़ा है? उस पर अस्तगफुरुल्लाह ज्यादा सलाहियत है। अस्तगफुरुल्लाह। आपके स्टेटमेंट से तो वही नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं कि अल्लाह खुद नहीं समझा सकता अपनी किताब में, आपको 10-10 साल मदरसे में देना अस्तगफुरुल्लाह, पड़ेगा। मैं ये मतलब कहाँ कह रहा आपके हूँ। मदरसा जो हाँ है वो, फिर क्या कह रहे हैं आप? फिर क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा है, आप बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज करते जा रहे हैं।
तो तुम अल्लाह से तुम ये कर रहे हो, हाँ क्या? हाँ, क्या कर रहे हैं हम कि लोग? अल्लाह नहीं समझा पा रहा है हम लोगों को। आपने कहा हाँ भाई कि कुरान आदमी नहीं समझ सकता जब तक 10 साल ना दे दे वो मदरसे में, आपने कहा। हाँ तो आपकी अल्लाह बात के को हम लिए रिपीट करके उस पे सवाल कर रहे हैं। इंसानी हाँ, जिस्म में आना मुहाल है। अल्लाह हाँ, वसीला बनाता है दूसरे अपने बंदे को कि वो दूसरों को समझाए। अल्लाह ने नबी इसीलिए भेजा, वरना अल्लाह कुव्वत सबसे बड़ा कुव्वत है अल्लाह ही के पास है। अच्छा एक कहाँ सेकंड है सा वो मेरा अपनी सवाल, किताब को नहीं समझा पा रहा है? हाँ, लो एक लो लो। एक थोड़ा सा मेरा सवाल, उसके बाद आप चलिए। हाँ अल्लाह क्या हुआ? इंसानी जिस्म में नहीं आ सकता, इसका मतलब है अल्लाह लिमिटेड है, कुछ काम है जो अल्लाह नहीं कर सकता। अल्लाह के लिए वो मुहाल है, हम मुहाल यानी कि बोलते नहीं आ हैं, सकता ना, ये नहीं कि मुहाल नहीं मींस कर सकते। लिमिटेड है, सेम चीज है। मुहाल का मतलब होता नहीं है नहीं, कि नहीं कर मुहाल का सकता, मतलब वो नहीं होता है। और क्या होता है? लिमिटेड लिमिटेड ये इंग्लिश में कहाँ से तुम उसको जोड़ रहे हो? अरे तो मुहाल मुहाल की को ट्रांसलेट करोगे तो वही लिमिटेशन ही होता ना भाई। हाँ तो तुम किस में ट्रांसलेशन कर रहे हो? मोबाइल में, गूगल में? हाँ किस में करना है आप बताओ, किस में करना है? आप बताओ किस में से करना है? देखो, अगर आप अच्छा लोगों आप को, बताओ मुहाल का क्या मतलब है? हमने जो समझा है अपने आलिमों से, बस उसी पे अमल हाँ, कर रहे हैं। और एक यार बात और सीखी है अपने एक सेकंड ये काम आलिमों कर, तो से। अंधी हाँ तकलीद हो गई ना। रजा तू अपने आलिम हाँ को ही ले तू आ, हाँ क्योंकि मुझे अंधविश्वासी है लगता भाई है कि जा। जब तू शादी करेगा हाँ, ना तो तू अपनी बीवी को पहले अपने आलिम को देगा, कि पहले मेरा आलिम तेरे साथ करेगा, मैं देखूंगा और फिर करूंगा। तो जितना तू हाँ आलिम आलिम तुम, बोल रहा है ना, अपने अरे आलिम को ले आ, मैं उससे बात कर अरे लेता हूं। तेरे से बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं है, हर थोड़ी देर बाद तेरा आलिम बीच में आया था तेरे सेंटेंस में। तूने शादी वाली रात भी अपने आलिम को बताना, आलिम साहब आप बैठे, मैं जरा ना खिड़की में से देखूंगा आप कैसे करेंगे, उसके बाद मैं करूंगा। तुम लोग सिर्फ यही सब बोलोगे। हाँ टॉपिक पे अच्छा एक नहीं बात चलना बता, है ना। लास्ट चीज, लास्ट ट्राई करते हैं भाई, लास्ट ट्राई करते हैं तेरे पर। अच्छा तूने बोला कि कुरान जो है वो समझा नहीं जा सकता, आसान नहीं है। तुमने खुद ये स्टेटमेंट दिए ना। हम्म ओके। तो अल्लाह कुरान को कुरान में समझने के कई लिए, मर्तबा, रुक जा, हाँ ऐसे तूने वैसे कहा अल्लाह फिर भी 10 साल झूठा है। लगते हैं, मदरसे में देना पड़ता है। अच्छा अब तुम झूठे हो कि अल्लाह झूठा है, ये तुमने फैसला करना है, क्योंकि कुरान में अल्लाह बार बार, यानी मेरे ख्याल से 9 से 10 बार जो है अल्लाह ने इस स्टेटमेंट को नकल किया है। कुरान चैप्टर वलक़द नंबर 6 यस्सरनल आयत नंबर कुरआन 114, लिज़्ज़िक्रि 6 की 114, वलक़द 10 की यस्सरनल 33, 12 की कुरआन 111, लिज़्ज़िक्रि 19 की 2। फ़हल मिन मुद्दकिर। हम्म, नहीं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह तो ये हम कहता है कि हमने इस कुरान को नाजिल फरमाया और लोगों के समझने के लिए आसान बनाया। हाँ तो अब तुम झूठे हो या तुम्हारा अल्लाह झूठा है, दो में से एक डिसाइड कर लो। ये कौन सी जुबान में उतरी? ओके, पहले अरबी ये जबान में बताओ। उतरी। अरबी अरबी में जुबान उतरी। में। हाँ हाँ, तो अरबी, हाँ। सहाबा कराम भी अरबी के जानने वाले थे। तो सहाबा का जब तेरे को बताया कि गाली दे रहा है छू चाटो करके, तो तू सहाबा की बात क्या मान रहा है? वो जो तुमने हवाला दिया वो कैसे मैं मान लूं सही है? अच्छा, कैसे आप कंफर्म करोगे कि जो हमने हवाला दिया वो सही है या गलत है? देख, मैं नहीं और बहस कर सकता। बहुत तेरे तुम आलिम को मानने लेके के लिए आएगा भाई, तैयार तेरे ही बस नहीं की हो, बात नहीं है। तुम्हारे तेरा मुकद्दर में आलिम है को ही लेके, नहीं। फिर मुकद्दर लेके आ गया बीच में। मैं यही बोल रहा हूँ कि तुम्हारे मुकद्दर में जा भाई, तेरे से मुसलमान नहीं हो बनना पाएगा। था ही नहीं। हाँ तो फिर अल्लाह की गलती है, अल्लाह की गलती है कि वो हमको मुसलमान बनना हमारे मुकद्दर में नहीं लिखा, और उसके बाद फिर हमको जहन्नम में भी और जलाएगा। मैं आई मीन जब व्हाट मैं काइंड जब ऑफ फूलिश। मैं जब आखिरत वाले दिन ये खड़ा होऊंगा तुम अल्लाह के मैदान सामने, महशर में चंडे जब चंडे मार के, पकड़े चंडे जाओगे मार ना के अल्लाह तब का यही। मुंह तोड़ दूंगा कि तूने मुकद्दर में नहीं लिखा, तू कैसे जन्नत में डाल सकता है? मुकद्दर में तो हाँ, तूने नहीं लिखा। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल होएगा, क्या देख नहीं हो लेना, सकता? देख लेना। ऐसा हो क्या ही नहीं नहीं हो सकता? सकता।
ایک کیا سجے نہیں ہو ہاتھ کی اور سکتا؟ ایک کھبے ہاتھ کی ٹپاک 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 اللہ کے منہ پہ چنڈے ماروں گا میں. مقدر میں لکھا بھی ہوتا ہے ایسا, وہ سب میدان میچر میں دکھ جائے گا. تو ہاں دیکھ لینا اس دن. ہاں. پھر وہی اللہ نے انفیل نبی باتیں, کس لیے بھیجا تھا؟ پھر ہاں وہی چورن اللہ نے نبی کس لیے بھیجا تھا؟ سیکس کرنے کے امب لیے, لینے کے لیے بھیجا, سیکس سیکس کرنے کے لیے, دن رات سیکس کرنے کے لیے, سیکس تم نے سیکس نبی دن کو رات سیکس جھٹلا کرنے کے لیے دیا. بھیجا تھا. جب سیکس سے تھک جائے تو خوب کرے ہم سیکس. یہ نبی نے کیا تھا ساری دن رات, ایک ایک دن 30 میں ایک مردوں ایک کی رات طاقت دی نبی تھی اللہ نے, 13 بیویوں کے ساتھ سیکس کرتا تھا تیرا نبی. 30 مردوں کی طاقت دی تھی اللہ نے تیرے نبی کو بھائی. چلا گیا, بھاگ گیا وہ. مین ہر 2 مطلب منٹ بعد اس کا دماغی مفت ہے. اپنگتا کا بھی ایک لیول ہوتا ہے یار ایڈل صاحب, پوری حدیں ان لوگ نے پار کر دی ہے. مطلب کتنے دماغی اپنگ رہتے یار یہ لوگ. ہائے ساحل صاحب, آج کے ٹاپک کوئی بات ہی نہیں کر رہا یار, سب ڈر رہے ہیں یار. آج کے ٹاپک میں رمضان میں آخری آیت اس نے ان نکالی, کے وہ بھی بس کی رمضان میں بات نہیں ہی آئی. نہیں ہے ایڈم صاحب, یہ انیس ان صاحب کے کہہ رہے ہیں بس کی بات ہی نہیں ہے. استغفر اللہ ایڈم اینڈ ساحل بھائی, اتنا نہیں مارنا تھا اسے. یار چلو یار, کسی سے اس ٹاپک پہ بات ہو جائے, مزہ آ جائے یار.